Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, students. I hope you all that will be fine. Today our lecture is neurological assessment. Okay, students. Today only you are listening me, not watching my videos. Okay, student. I need your comments here. Slide visible and voice is clear. Then we will start it. Okay. G. Noreen James, Khatija, Shahzad. Good evening to all. You are joining register. Yes, you are registered first time. Hmm. Okay, thank you, Noreen. You are clear me. My voice is clear and also slides are visible. Now we will start to the lecture. Okay, G. Welcome to all who are joining. Just a moment. But come fast, students. Another. जी वालेकुम सलाम आरफा जी students. Okay, today our learning objective is, so I will introduce your neurological assessment. Neurological assessment, we are divided into parts. First part is review a brief anatomy physiology and also basic terminology and discuss central and peripheral nervous system. What is the difference between central and peripheral nervous system, and also complete health history. Okay. So today our learning objective is, by the end of this lecture, student will be able to review the basic terminology of nervous system and to describe the system specific health history for the nervous system, discuss central and peripheral nervous system, and student will be able to demonstrate the complete neurological assessment consists of 5 steps: mental status examination, cranial nerve assessment, and how to test the reflexes, and how to examine the motor system, and how to assess the sensory nervous system, and evaluate the coordination and gait. Walaikum Salam, Mariam, Sundars. Okay, these are the learning objectives we will discuss one by one. Is it clear? ओके, आज स्टूडेंट्स हम बेसिकली क्या है, हमने जस्ट लाइक ब्रीफली जो है रिव्यू करना है कि इसके बेसिक नर्वस सिस्टम की टर्मिनोलॉजी क्या है और हेल्थ हिस्ट्री क्या है, और हमने डिवीजन कैसे करते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और डिमॉन्स्ट्रेट हम कैसे करते हैं कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल मींस फिजिकल असेसमेंट, जो कि कंसिस्ट ऑफ 5 पॉइंट्स या 5 स्टेप्स आप कह सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, नंबर 2 पे क्रीनियल नर्व असेसमेंट, रिफ्लेक्स टेस्टिंग, मोटर सिस्टम असेसमेंट, सेंसरी कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। ठीक है, these are the learning objectives we will discuss one by one. Is it clear? Okay, now come to point. Agnosia is a basic terminology, loss of ability to recognize objects through a particular sensory system, मे बी विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल हो सकती है। ठीक है, ग्नोजिया क्या है? बाय द डेफिनेशन वी विल डिस्कस लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट थ्रू अ पर्टिकुलर सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम में क्या है, मे बी विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है और टेक्टाइल हो सकता है। अटेक्सिया, अटेक्सिया क्या है? इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट रिजल्टिंग इन डिफिकल्टी इन वॉकिंग, टॉकिंग एंड परफॉर्मिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज। ओके, एग्नोजिया में क्या है कि हमारी लॉस ऑफ एबिलिटी हो जाती है रिकग्नाइज ऑब्जेक्ट थ्रू अ पर्टिकुलर सेंसरी सिस्टम में, और एटेक्सिया में क्या है? इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट, किसकी वजह से? रिजल्टिंग इन डिफिकल्टी इन वॉकिंग, टॉकिंग, परफॉर्मिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड अटेक्सिया। जस्ट इनएबिलिटी कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स मूवमेंट की हो जाती है, जस्ट यू कीप इन माइंड। ओके, क्लोनस,
Abnormal movement marked by the alternating contraction and relaxation of muscles occurring in rapid successions. ठीक है, I think आप लोग we will already discuss in the musculoskeletal system clonus. Clonus में क्या था, हमने गेट असेसमेंट की अगर मसल्स में बात की थी तो उसमें यही था कि abnormal movement है marked by the alternating contraction and relaxation of muscles occurring in rapid successions. जी, फोटोफोबिया, इनएबिलिटी टू टॉलरेट लाइट. डेफिनेटली आपको पता है कि लाइट से अगर किसी को फियर है, टॉलरेट नहीं करता, फोटोफोबिया हम उसको लेबल करते हैं. रिजिडिटी क्या है? इंक्रीज इन मसल टोन एट रेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पैसिव स्ट्रेच. ठीक है. स्पेस्टिसिटी, ठीक है, स्पास्टिसिटी में क्या है? सस्टेन इंक्रीज इन टेंशन ऑफ मसल्स व्हेन इट इज पैसिवली लेंथ और स्ट्रेच. अगर आप इसमें देखिए कॉर्टिकेट और डीकॉर्टिकेट, न्यूरोलॉजिकल में जब कोमाटोज में पेशेंट्स आ जाते हैं तो उसमें भी मसल रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी हो जाती है, तो उसको हम लेबल करते हैं कॉर्टिकोट और डीकॉर्टिकेट, जिसमें पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है. मोस्टली टेटनस वाले पेशेंट्स में भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं. ठीक है, इज इट क्लियर यहाँ आपको? ओके, नाउ वी विल टेक अ ब्रीफली हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट्स. ठीक है, हम इसको हिस्ट्री को जो है हम फॉरगेट नहीं कर सकते. ओके, हम हिस्ट्री को क्यों नहीं फॉरगेट कर सकते? क्योंकि हम कोई भी सिस्टम को रिव्यू करने से पहले हमें जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन थ्रू हिस्ट्री जो है वो हम कलेक्ट करते हैं. तो इसलिए इट इज़ अ कंपल्सरी टू एवरी सिस्टम व्हेन वी आर परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी इट द बेस इज द मेडिकल हिस्ट्री. ठीक है, आइदर वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, पास्ट और सोशल हिस्ट्री इज अ वेरी कंपल्सरी. ओके जी, हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेन. व्हेनेवर पेशेंट्स कम टू क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, तो पेशेंट्स हैविंग अ कंप्लेन, ठीक है, यू कैन से एज ए प्रेजेंटिंग कंप्लेन एंड चीफ कंप्लेन. तो आप कोई भी उसको कह सकते हो कि पेशेंट जब भी आपके पास आता है तो आपने किसी ना किसी वो कंप्लेन के साथ आता है. ऐसे ही तो वो भी हॉस्पिटल विजिट करने के लिए नहीं आता. ठीक है, इज इट क्लियर? आस्क अबाउट द सिम्टम्स. जब आपके पास पेशेंट आया है, वो बता रहा है कि मुझे हेडेक हो रही है, ठीक है, या मुझे सीवियर बॉडी एक है, मेरी नेक में रिजिडिटी है, मसल स्टिफ हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपने जो है हिस्ट्री किसकी बेस पे लेनी है? मर्जौरी जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के मुताबिक, जो कि 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है, उसको हमने फॉलो करते हुए पेशेंट से हमने हिस्ट्री कलेक्ट करनी है. ठीक है, वी आर एडवांस लर्नर. बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि एडवांस में हमने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि मर्जौरी जॉर्डन ने एक हमारे लिए इजी वे जो है डेटा कलेक्शन के स्टेप्स हमें जो है वो बता दिए हैं. तो उसके मुताबिक में हमने हिस्ट्री कलेक्ट करने हैं. हिस्ट्री कलेक्ट करने के जितने भी 11 फंक्शनल पैटर्न हैं, उस हर पैटर्न में आपने क्वेश्चन जो है वो मेंटली प्रिपेयर रहना है. इस हेल्थ परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट है, इसमें हमने क्या सिस्टम है, क्वेश्चन अराइज करेंगे. स्लीप और रेस्ट पैटर्न है, उसमें हम कौन से करेंगे, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक है. इन सब पैटर्न में आपके माइंड में क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए कि हमने फोकस क्वेश्चन कौन कौन से करने. इज इट क्लियर? एग्जैक्टली, थैंक यू नोरीन. वी हैव फॉलो टू जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न. ठीक है, आस्क अबाउट द सिम्टम्स, व्हाट आर दे. ठीक है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू दे अफेक्ट, कि मतलब कौन सी प्रॉब्लम के साथ है प्रेजेंटिंग कंप्लेन, हम उससे पूछ रहे हैं. विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू दे अफेक्ट, आर दे लोकलाइज और मोर वाइड स्प्रेड. When did they start? डेफिनेटली हम पूरा उससे पूछते हैं. कोल्डेस्पा या कोल्डेरा हम उसको कॉल करते हैं, पेन असेसमेंट या कोई भी सिस्टम असेस करते हैं. हाउ लॉन्ग डू दे फास्ट लास्ट फॉर, वेयर दे सडन रैपिड और ग्रेजुअली इन ऑनसेट. ठीक है, इज देयर अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा. तो डेफिनेटली आपने सारे सिम्टम्स को फोकस करते हुए प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को फाइंड आउट करना है कि आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा जो है वो अफेक्ट है, लोकलाइज है या ज़्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है. जैसे आप ट्रॉमा की बात करते हैं, कब ये पेन, अगर पेन है तो पेन कब स्टार्ट हुई है, लास्ट कितनी दफ़ा कितने टाइम के लिए रहती है, 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, या 1 या 30 सेकेंड्स के लिए. ठीक है, सडन स्टार्ट हो जाती है आपको सिम्टम, या रैपिडली या ग्रेजुअली इन ऑनसेट. ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हो सकता है कि पहले आपको हिस्ट्री हुई ट्रॉमा की, एक एक्सीडेंट हुआ है रोड साइड या कोई वैसे फॉल डाउन हुआ है जिसकी वजह से जो है वो उसके सिम्टम्स आपको नजर आ रही है. ठीक है, क्लियर है? ओके,
आस्क अबाउट एनी एसोसिएटेड सिम्टम्स अदर फीचर्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने बात कर ली। हेडेक, नमनेस, पेन एंड नीडल्स, कोल्ड और वार्म। ठीक है, वीकनेस, अनस्टेडीनेस, स्टिफनेस और पोस्चर्स, nausea or vomiting, visual disturbance, ऑल्टर कॉन्शियसनेस। दीज आर द सिम्टम्स जिनको हमने फोकस करना है। वो पेशेंट बताएगा मुझे जी हाथ पाँव सो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, चलते चलते एकदम से मुझे लगता है चक्कर आ रहे हैं, पोस्चर जो है वो स्टिफ है, जिस तरह मैं नेक स्टिफनेस की बात की। ठीक है, नोजिया फील होता है या वॉमिटिंग होती है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, ब्लड विजन है। ठीक है, ब्लड विजन है या नाइट में मुझे समझ नहीं आती, चक्कर आ जाते हैं, जब मुझे आंखों के आगे अंधेरा आता है। इस तरह अल्टर कॉन्शियसनेस के मुझे समझ नहीं आती, जो चीज़ रखती हूँ भूल जाती हूँ, या मतलब मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। तो ये हिस्ट्री पेशेंट्स आपको वर्बलाइज कर रहे हैं और मुझसे पूछ रही है। जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। Now we will ask the past history from the patient. Some neurological problems can present years after a causative events. Inquire about other medical problems, past and present. This may give clue to the diagnosis. ठीक है, अगर कोई सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है पेशेंट्स को, तो वो मतलब कैन प्रेजेंट है ईयर्स, मतलब पिछले सालों का कोई काज हो सकती है जो प्रेजेंट कर रही है। और आप इंक्वायर करेंगे अबाउट अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स जो कि पास्ट और प्रेजेंट से कोरिलेट करती हैं। दिस में भी आपको कुछ क्लू मिल जाए आपको डायग्नोज करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इज इन एट्रियल फिब्रिलेशंस मे बी प्रोड्यूसिंग मल्टीपल टाइनी एम्बुलाई। ठीक है, देयर मे बी वास्कुलर प्रॉब्लम्स और रिकरेंट। क्योंकि हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं, तो इट इज़ अ मैंडेटरी टू कलेक्ट अ पास्ट हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट्स। There may be vascular problem or recurrent miscarriages to suggest a anti-phospholipid syndrome हो सकता है. There may be diabetes. Ask about pregnancy, delivery and neonatal hair. Okay? These are the past history कि अगर हम हमें कुछ डायग्नोज करने में जो है वो हेल्प हो सकती है, हम पेशेंट से इसके क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं उसकी पास्ट हिस्ट्री से। जी, सिस्टमैटिक इंक्वायरी। सिस्टमैटिक इंक्वायरी में हम क्या करेंगे, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फॉर एग्जांपल, लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट मे सजेस्ट मैलिग्नेंसी एंड दिस मे बी पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, कैंसेरियस की तरफ जा रहे हैं, उसकी सिम्टम्स डेवलप हो रही है। गेनिंग वेट में हैव अ प्रिसिपिटेटिंग डायबिटीज और पोलियोरिया में सजेस्टेड डायबिटीज। सिस्टम में हम इसलिए रिव्यू करते हैं हर सिस्टम को, क्योंकि इसी तरह जॉर्डन फंक्शन पैटर्न की आप लोगों ने बात की और आपने बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किया हुआ है और किस तरह से हिस्ट्री ट्रैक करते हैं। इसीलिए हम सिस्टम इन्वाइट करते हैं, जैसे रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न देखते हैं, उसका कूपिंग स्ट्रेस मैकेनिज्म देखते हैं, कि ये सारी चीज़ें हम उसमें रिव्यू करते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाता है क्या कि कौन से सिस्टम में पेशेंट्स को प्रॉब्लम है। बट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे आपने फोकस रखना है, क्योंकि फोकस इंटरव्यू आप कर रहे हो, तो आपने फोकस क्या है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन है आपकी कि पेशेंट को हेडेक है, हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट सिस्टम पे फोकस किया है, तो डेफिनेटली आप उस पर फोकस करोगे। ओके जी। फैमिली हिस्ट्री, ये भी बहुत बड़ी एक मैटर करती है। फैमिली हिस्ट्री कंसीडर इफ देयर मे बी जेनेटिक बेसिस और predispositions. For example, Hintergun or chorea is unusual in that it is a familial disease that does not present until well into the adult life. ठीक है, तो इसमें भी जो है आपका फैमिली हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, सेरिब्रल एनोरिज्म हो सकता है, न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, एपिलेप्सिस, माइग्रेन, वास्कुलर डिजीजेस में भी इम्पोर्टेंट। दीज आर द फैमिली हिस्ट्रीज। फैमिली हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है कि फैमिली हिस्ट्री में डेफिनेटली बिलोंग करती हैं जैसे जेनेटिकल इश्यूज हैं, क्योंकि कंसीडर करते हैं हम मे बी जेनेटिक बेसिस पे, और प्री डिस्पोजिशंस जिसमें हिंटिंगटन डिजीज। हिंटिंगटन डिजीज क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट हिंटिंगटन डिजीज? जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? हैव यू एनी डिफिकल्टी? जी, जेनेटिक बेसिस की बात की और मैंने आपसे हंटिंगटन कोरिया डिजीज क्या है, ये क्या कंडीशंस हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट? जी, आई नीड योर आंसर। स्टूडेंट प्लीज टाइप हियर, आर यू विद मी?
यस, ओके, गुड, जी क्या है? जी स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज हंटिंगटन कोरिया इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है बेटा, रिजल्ट इन डेथ हो जाते हैं हमारे ब्रेन सेल्स के, और इसमें जो है सबटल प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्टली पेशेंट्स का क्या होता है, मूड स्विंग कर जाता है। क्या कर जाता है? मूड स्विंग कर जाता है। ओके, इनहेरिटेड डिजीज है क्योंकि जब से ये बात की फैमिली हिस्ट्री की, तो इसमें जेनेटिक बेसिस है और प्री डिस्पोजिशन है। प्री डिस्पोजिशन क्या है? सेंसिटिव मैटर्स हो जाते हैं, ठीक है। और हंटिंगटन कोरिया जो है वो यूजुअली दैट इज फैमिली सिमिलर डिजीजेज होते हैं दैट डज नॉट प्रेजेंट अंटिल वेल इनटू द अडल्ट लाइफ। तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं और इसमें ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है। और मोस्टली क्या होता है, सिम्टम ऑफ्टन जो होता है वो सबटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिस तरह आपका मूड, मेंटल एबिलिटीज, जनरल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अनस्टडी गेट ऑफन फॉलो करते हैं। तो ये आपकी फैमिली हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली बेटा सुमैया, थैंक यू। सुमैया ने आंसर किया है, दिस इज अ फेटल जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज अ प्रोग्रेसिवली ब्रेकडाउन ऑफ द नर्व सेल। डेफिनेटली ब्रेन सेल्स क्या होते हैं, ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा सेप्टल जो है वो प्रॉब्लम्स है। जी, एग्जामिनेशन पॉइंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए हमें क्या है, इक्विपमेंट्स भी रिक्वायर है। एवरी सिस्टम के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू मरियम, बेटा आपने आंसर किया। सुमैया आपने, थैंक यू। जी, बिग ट्रे, डेफिनेटली आप इक्विपमेंट करते हैं तो आप एक ट्रॉली लेंगे, उसके ऊपर एक ट्रे के ऊपर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। बिग ट्रे आप कवर के साथ ले सकते हो या ट्रॉली ऑर्गेनाइज कर सकती है। शीट फॉर कवर पेशेंट्स के लिए चाहिए आपको, जिसको ड्रैप शीट भी कहते हैं। ग्लव्स चाहिए, रिफ्लेक्सिस हैमर और ट्यूनिंग फॉर्क भी चाहिए जो कि 125 हर्ट्ज कम होना चाहिए। स्नेल एंड आई चार्ट्स और पॉकेट बिलियन कार्ड चाहिए। पेन लाइट और ऑटोस्कोप चाहिए। कॉटन स्वैब्स और बॉल चाहिए। आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जब पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। नीट में भी ये कुछ चीज़ें न्यूरोलॉजिकल, जब हम क्रीनियल नर्व्स को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे। जैसे हमने वाइबर रेनिन टेस्ट पढ़ा, ठीक है, ऑलरेडी नीट में हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी हम उसको अच्छे से जो है वो देखेंगे। आई के आई असेसमेंट में हमने पढ़ा हीट में ही, ठीक है। इसमें भी हमने विजुअल पाथवे देखा, ठीक है, विजुअल फील्ड देखी। इसमें भी ऑलमोस्ट हम ये चीज़ें देखेंगे क्योंकि क्रीनियल नर्व्स को हम असेस करना है, तो किस तरह वो फंक्शन कर रही है उन पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज आर द इक्विपमेंट्स वी आर यूजिंग न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। जी, बीपी प्रेटर, स्टेथोस्कोप, स्टील किडनी ट्रे, टेस्ट ट्यूब, वन फॉर कोल्ड वाटर और वन फॉर हॉट वाटर, टॉर्च चाहिए, कॉमन पिन्स और नीडल चाहिए क्योंकि पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। इन लिस्ट करनी है आपने क्योंकि इसमें हम क्रीनियल नर्व्स को असेस करते हैं, तो इसमें हर चीज़ हमें ज़रूरत है, ठीक है। टूल्स ऑफ द ट्रेड, टूल्स भी कह सकते हैं, इक्विपमेंट भी कहते हैं। ये स्नेलन चार्ट आपका, ठीक है, सेफ्टी पिन है जिसमें शार्प और ब्लंट एज भी होते हैं, जिसमें टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की ट्यूनिंग फॉर्क है। यू ऑलरेडी वेल नोन अबाउट दीज इक्विपमेंट्स, टंग डिप्रेसर, हैमर, कॉटन बर्ड्स और ऑटोस्कोप, ठीक है। ऑटोस्कोप या डायग्नोस्टिक सेट इसको बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके। इंडिकेशंस, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें हमें असेस करने की जरूरत पड़ती है? पेशेंट अंडर सफरिंग अंडर डिजीजेस सच एज मेनिंजाइटिस, हेड इंजरी। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की बात हो रही है, वी आर डिस्कसिंग न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है। तो उसमें मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट्स, हेड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, अनकॉन्शियस पेशेंट्स, हाई ग्रेड फीवर्स, टेटनस एंड कोमाटोस पेशेंट्स, ठीक है। These are the indications when we are assess the neurological system. जी, फिजिकल असेसमेंट सबको समझ आ रही है अच्छे से, क्योंकि ये सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा मे बी आपको मुश्किल भी लगे, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग और इजीली अंडरस्टैंडेबल। इसमें ऑलमोस्ट जो है वो आपने हिस्ट्री की ज़्यादा बात करनी है और क्रीनियल नर्व्स की। और physical assessment, a complete neurological assessment consists of
फाइव स्टेप्स क्या है, मैंने ऑलरेडी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में एट द बिगनिंग डाला था। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, क्रीनियल नर्व असेसमेंट, रिफ्लेक्स टेस्टिंग, मोटर सिस्टम और सेंसरी, क्योंकि हम इसमें क्या देखते हैं, मोटर और सेंसरी हमारी क्रीनियल नर्व्स, ठीक है, तो कुछ प्योरली मोटर है, कुछ हमारी मिक्स है और कुछ प्योरली हमारी सेंसरी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की बात करेंगे तो हम डेफिनेटली इसमें रोमबर्ग टेस्ट करेंगे सेरिबेलम का फंक्शन टेस्ट करने के लिए। ओके, 5 पॉइंट्स है हमारे, मेंटल स्टेटस, क्रीनियल, रिफ्लेक्स, मोटर, सेंसरी, कोऑर्डिनेशन एंड गेट जो है वो एक्स्ट्रा ही हम चीज़ें डाल देते हैं, इसी के अंदर आ जाते हैं। ओके, हाउ टू असेस द मेंटल स्टेटस एग्जाम, इसको मिनी भी कहते हैं, एमएमई भी कहते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस भी इसको हम कहते हैं, और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इंटेलेक्चुअल, न्यू लर्निंग, जजमेंट एंड परसेप्शंस। इंटेलेक्ट में क्या हम देखते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल में मेमोरी देखते हैं, ओरिएंटेशन, रिकॉग्निशंस एंड कैलकुलेशंस। न्यू लर्निंग में हम क्या देखते हैं, जजमेंट और उसकी हम परसेप्शंस देखते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस। जी, ओके, अलर्टनेस, अलर्टनेस में हम क्या देखेंगे, रेंज फ्रॉम अलर्ट टू कोमाटोस। अलर्ट क्या है, एंड ओरिएंटेड, अलर्ट एंड ओरिएंटेड मीन्स दैट द पेशेंट एट लीस्ट, ठीक है। अगर हम अलर्ट की बात करते हैं, इसमें हम पेशेंट्स को हम क्या देखेंगे, अलर्ट की बात करेंगे, रेंज फ्रॉम अलर्ट टू कोमाटेज। अगर हम अलर्ट को बाय द डेफिनेशन देखें, ओरिएंटेट करें, तो उसमें क्या है, मीन्स पेशेंट एट लीस्ट, जिसको हम जीसीएस की भी बात करते हैं, ठीक है, उसमें हम अलर्टनेस पेशेंट्स की देखते हैं ग्लासगो कॉमा स्केल में। ओपन आई स्पॉन्टेनियसली, कन्वर्स अप्रोप्रिएटली, मतलब बातचीत वो करता है अप्रोप्रिएटली विदाउट एनी जो है डिस्टर्बेंस, फॉलो वर्बल कमांड रिक्वेस्ट, is oriented to persons, self and others, place, state on, building and time, month, day and year. This is by the definition is called a alert and oriented. Okay, is it clear students? Are you with me? Any difficulty? Are you got my point? Okay. जी, इंटेलेक्चुअल फंक्शन, इंटेलेक्चुअल फंक्शन में हम क्या चीज़ें देखते हैं, उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाउ टू कैलकुलेट द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मीन्स, फॉर एग्जांपल्स, 100 सब्ट्रैक्ट 7, तो कितने रह गए बाकी, 93। तो हम पेशेंट से इसी तरह इंटेलेक्चुअल उसकी फंक्शन को हम देखते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं 100 माइनस 100 में से सब्ट्रैक्ट करें 7, तो रेस्ट ऑफ क्या आएंगे, 93। अब 93 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 86। अब 86 में हम उसको क्या करेंगे, 7 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 79। इस तरह हम 7 का डिजिट जो है वो यूज़ किया, और पेशेंट से जो है ना वो हमने उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शन को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब थॉट कंटेंट, थॉट कंटेंट में हम किस तरह पेशेंट को जो है वो जज करेंगे, क्योंकि मेंटल एग्जामिनेशन सिस्टम को हम एग्जामिन कर रहे हैं। स्पोटेनियसली वो बात कर रहे हैं, नेचुरल है, क्लियर है, रेलिवेंट है एंड कोहेरेंट है, ठीक है, परसिस्टेंट है, उसमें रेलिवेंसी है। इज इट क्लियर, कि ये तो नहीं है कि मतलब वो सोच सोच के अटक अटक के कुछ चीज़ें बता रहा है, नॉर्मल स्पोकन है, नॉर्मल बात कर रहा है और इजी कंफर्ट में है। इमोशनल स्टेटस डेफिनेटली अफेक्ट फ्रॉम द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, तो उसमें हम क्या करेंगे, इमोशनल दिखेंगे कि उसका मूड तो नहीं स्विंग, ठीक है, नेचुरल है, इवन है, इरिटेबल तो नहीं है, एंग्री, फ्लैट, एंशियस, एपैथेटिक, ठीक है, और यूफोरिक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एपैथेटिक एंड यूफोरिक? जी, जी स्टूडेंट्स। हम्म, जी बेटा। ओके, इमोशनल का मतलब ये है कि एकदम से बहुत खुश हो जाना, आपके मूड की बात हो रही है, ठीक है, आपके एटीट्यूड की इफेक्ट की बात हो रही है, उसका नॉर्मल है, इवन है, इरिटेबल है, एंग्री है, फ्लैट है, इन सब चीज़ों की। इपैथेटिक में कि या तो कोई इंटरेस्ट ही वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। यूफोनिक में अपनी फीलिंग जो है वो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस जो है वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, एपैथेटिक और यूफोरिक।
इज द सेम थिंग, ठीक है। उसमें फीलिंग अपनी जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। इंटेंस फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट इज अ यूफोरिया। थैंक यू सुमैया शाहिद, ठीक है बेटा। ओके, परसेप्शन। परसेप्शन में क्या है? इग्नोसिया, इनएबिलिटी ऑफ क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। हमने टर्मिनोलॉजी में स्टार्ट में ही इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इग्नोसिया क्या है, ठीक है। परसेप्शन में हम इग्नोसिया को असेस करेंगे, जो कि बाय द डेफिनेशन हमें टर्मिनोलॉजी पता है कि इनएबिलिटी टू क्लाइंट रिकॉग्नाइज, अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता थ्रू स्पेशल सेंसेस, क्योंकि हमने कंप्लीट जो है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम 5 स्टेप के मुताबिक पे करते हैं। Exactly, apathetic means showing no interest. Thank you, Sumaya. सुंदस, अदीला, सुमैया, शाहिद, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने आंसर किया। ओके, ठीक है। तो इसमें हम सेंसरी फंक्शन को भी असेस कर रहे हैं और मोटर को भी कर रहे हैं। मोटर एबिलिटीज, जिसमें थ्रो अ बॉल, हम पेशेंट्स को कोई भी चीज़ पकड़ाते हैं या बॉल पकड़ा देते हैं, उसको कहते हैं कि ये मेरे आप थ्रो करें, तो इसमें हम मोटर, वॉइस नहीं आ रही बेटा सोनिया, यू कैन चेक ऑन नेटवर्किंग। स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको? आ गई है मैम, ओके, थैंक यू बेटा। जी, क्योंकि मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ कि मेरे बच्चों का एटलीस्ट मेरी वॉइस तो जाननी चाहिए, ठीक है। तो सेंसरी में स्पेशल सेंस के थ्रू, जैसे कि हमने परसेप्शन एग्नोसिया की बात करते हैं, तो हमने हैंड के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो उसके कॉइन रख दिया या की रख दी है, तो हम पेशेंट्स को कहते हैं विद द आई क्लोज, ठीक है। पेशेंट्स को हम कोई भी प्रोसीजर यहाँ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में करना है, तो हमने पेशेंट्स की आई को क्लोज करना है और ओपन में पहले प्रैक्टिस करवानी है, फिर आई क्लोज के साथ हमने उसको रिकग्निशन करवानी है। तो पेशेंट को कहना है आज द पेशेंट टू क्लोज योर आईज, तो उसकी हैंड के ऊपर आपने क्या करनी है, कोई कॉइन रख देना है, ठीक है, या कोई की रख देनी है, तो उसको कहना है कि अपने मुट्ठी क्लोज कर ले और अब मुझे रिकग्नाइज करके बताएं अपने स्पेशल सेंसेस को यूज करते हुए कि मैंने आपके हैंड के ऊपर क्या है। तो अगर तो उसकी सेंसेस इंटैक्ट होगी तो ऑब्वियसली वो आपको जो है वो रिकग्नाइज करेगा कि ये कॉइन है या की है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब मोटर एबिलिटी में पेशेंट्स की मोटर एबिलिटी इंटैक्ट होगी, तो आप जैसे उसको कह रहे हो थ्रो अ बॉल, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट जो है वो आपको थ्रो करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी मसल स्ट्रेंथ ठीक है, मोटर एबिलिटी उसकी इंटैक्ट है। जी, लैंग्वेज एबिलिटी, एफेजिया, ठीक है, एफेजिया, ब्रोका एफेजिया, एक्सपेंसिव एफेजिया, ब्रोका वर्निक्स एफेजिया, रिसेप्टिव एफेजिया, वर्ली। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रोका एफेजिया में भी हमें आगे नेक्स्ट एनाटॉमी में थोड़ा सा है, उसमें वो आप चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, आपको देख लेंगे कि ब्रोका एरिया क्या है, स्पीच वाला है, ठीक है। उसमें एक्सप्रेसिव एफेजिया है, वर्निक्स एफेजिया है, जिसमें रिसेप्टिव अफेजिया होता है, वर्ड जो है हम प्रॉपरली जो है वो मतलब फुलफिल जो है वो वर्ड नहीं बोलते, तो उसको हम लैंग्वेज एबिलिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल, पेशेंट्स रोल इन सोसाइटी इंक्लूडिंग फैमिली एंड कम्युनिटी। डेफिनेटली अगर आप न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्ब हम कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली जब ओल्डर अडल्ट हो जाते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री भी है, तो वो पेशेंट या तो खुद ब खुद ही बोलते रहते हैं, ओल्डर अडल्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी है कि जब वो ओल्डर हो जाते हैं तो तब उनका जो है कॉन्शियस लेवल इंटैक्ट नहीं रहता। तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल पर बात करती है, सोसाइटी में रोल क्या है, ये उससे कोड करा है, फैमिली और कम्युनिटी में। इज इट क्लियर? ओके जी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑलरेडी हमने ये देख लिया था कि अलर्ट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से हमने देख ली थी। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम देखते हैं अरोजल, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ और इन्वायरमेंट, ठीक है। डेफिनेटली अगर तो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस इंटैक्ट है, अरोजल है, अवेक है, अवेयर है अपने बारे में भी और इन्वायरमेंट में भी, तो इट मीन्स यू कैन लेबल level conscious is intact, alert, fully awake, appropriate response to external and internal stimuli, oriented to persons, place and time, ठीक है। 3 words आप, ठीक है, प्लेस, पर्सन और टाइम की बात होती है। जी, लिथार्जिक, लिथार्जिक कैसा पेशेंट्स होगा, समोलेंट, ड्रॉजी, लिस्टलेस, indifferentiate to surrounding, very sleepy, can be aroused from sleep, but when stimulation ceases, fall back to sleep, may be oriented or confused। अगर हम लेथार्जी पेशेंट्स, अगर आपने देखा होगा इमरजेंसी में या मेडिकल वार्ड्स में ड्यूटी की होगी, तो वो कैसा होता है कि आप उसको वेक करते हो, वो कॉन्शियस तो होता है और जो है वो आइज ओपन करता है और फिर क्या है,
और साथ ही वो लेथार्जिक हो जाता है, मतलब स्लीपी कंडीशंस में फॉल डाउन जो है वो फॉल बैक चला जाता है स्लीप में, मे बी ओरिएंटेड और कंफ्यूज हो सकता है। ओके जी, एरिया ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम असेसमेंट समझ आ रही है आपको? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है बेटा? यहाँ तक क्लियर है सब? ओके, एरिया ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। एडिशनल असेसमेंट में हम जीसीएसपी से कहते हैं, सबको पता होगा आईसीयूज में जो जो ड्यूटीज कर रही हैं कि हम उसमें 3 चीज़ों को देखते हैं। क्या देखते हैं? आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर हम ये हमने लेबल किया हुआ है आई ओपनिंग के 1 to 4 है। अगर अगर हम नॉर्मली पेशेंट डेथ है तो उसमें हम क्या स्कोरिंग देते हैं जीसीएस की? 3 स्कोरिंग। नो रिस्पॉन्स है आई पे भी, मोटर पे भी और आपकी वर्बल कमांड पे भी, तो उसको हम आई देंगे, ठीक है। ओके, अब स्पॉन्टेनियसली है तो हम 4 उसको लेबल करेंगे। वर्बल कमांड उसकी अच्छी है, बोल सकता है, तो 3 है। पेन है तो उसको हम पेनफुल स्टिमुलाई के साथ वो आई ओपन कर रहा है तो उसमें हम पेशेंट्स को जो है वो हम 2 लेबल करेंगे। ओके, अगर पेशेंट्स को हम रिकॉर्डिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर सी हम उसको लेबल करेंगे, ए बी सी की बात करते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे? सी लेबल करेंगे इफ आई क्लोज बाय स्वेलिंग, ठीक है। और मोटर की बात हो रही है तो इसको हम 6 जो है वो 1 to 6 हम स्कोरिंग देते हैं, ठीक है। तो 6 अगर हम टू पेनफुल स्टिमुलाई के साथ है, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है। तो हम क्या उस पेशेंट्स को क्या करेंगे? अपर रिकॉर्ड करेंगे बेस्ट अपर लिम्स रिस्पॉन्स। बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड ई करेंगे इफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इन प्लेस, टी इफ ट्रेको जो हमारा ट्रेकोस्टमी ट्यूब इन प्लेस, ठीक है। ये सब चीज़ें ट्रेकोस्टमी एंडोट्रेकियल है तो ई उसको लेबल करेंगे। ये जीसीएस का एक जो है वो उन्होंने ग्लासको कॉमा स्केल का एक वर्बलाइज किया हुआ है, ठीक है। ये आप खुद अच्छे से पढ़ सकते हो, इसमें इतनी हमें डिटेल डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। ओके जी बेटा नौरीन, ठीक है, इज इट क्लियर? जी, नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जी बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? नौरीन जेम्स, आई थिंक कुछ लिखा है आपने। स्लीपी ड्रॉजी बेटा। जी क्लियर है। ओके, नौरीन जेम्स आपने बेटा आई थिंक व्हाट इज अ सोमोलेंट, तो इसमें स्लीपी और ड्रॉजी की बात हो रही है। प्रीवियस स्लाइड्स में अगर आप देखना चाहो तो उसमें देख सकते हो क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। सोमोलेंट का मतलब है ड्रॉजी, स्लीपी इसका मतलब यही है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके जी, नर्वस सिस्टम वी आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड, ठीक है। पेरिफेरल की बात करते हैं तो इसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। इज इट क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट्स में, सेंट्रल में और पेरिफेरल में। सेंट्रल में क्या देगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में क्या आएगा? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स। ओके, मेजर ब्रेन सब डिवीजन। अगर मेजर ब्रेन 2 तो हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल में और पेरिफेरल में, ठीक है। अब इसकी हम मेजर ब्रेन की जो है सब डिवीजन भी हम करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? आई थिंक आप लोग इन चीज़ों से ओरिएंटेड ना हो पहले, बाकी चीज़ों का तो होगा आपको, पेरिफेरल और सेंट्रल का पता होगा। अब ब्रेन में सब डिवीजन में क्या करते हैं? टेलेंसेफ्लॉन, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम आपको पता है, बट अगर हम छोटा सा वर्ड एक चेंज कर देते हैं तो उसमें क्या है? टेलेंसेफ्लॉन, सेरिब्रम, ठीक है, और डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन में क्या है आपका? ठीक है, थैलमस आ जाता है
और क्या आता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। और ये है टेलेंसेफ्लॉन में। और मेसेंसेफ्लॉन में क्या आ जाता है हमारा, मेस टोटल हम इसको कहेंगे मेस इंसेफ्लॉन, मेटा इंसेफ्लॉन, जिसमें पॉन्स एंड सेरिबेलम आ जाता है, कि सेरिब्रम और सेरिबेलम इज आर डिफरेंट। ओके, ठीक है, जिसमें मेटासेल्फर में पॉन्स एंड सेरिबेलम है, और माइलोइनसेफ्लॉन में मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या था, हमने पढ़ा पिछले दिनों इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि ब्रीदिंग सिस्टम को जो है वो ये कंट्रोल करता है, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है, ब्रीदिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ, किस मेजर है सब डिवीजन क्या है इसकी, टेलिनसेफ्लॉन में सेरिब्रम हम कहते हैं, डाइनसेफ्लॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाता है, और मेसेंसेफ्लॉन में क्या जाता है हमारा, मेटाइनसेफ्लॉन में पॉन्स और सेरिब्रम, सेरिबेलम, और माइलिनसेफ्लॉन में मेडुला एंड ऑब्लोंगेटा है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज परेशान होने वाली बात नहीं है, जस्ट इनकी डिवीजन थोड़े डिफरेंट वे में कर दिया है। इज इट क्लियर जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, वो हमने पढ़ी सब डिवीजन्स। अब हमने इंटरनली देखा कि कौन सा हमारा सेरिबेलम, सेरिब्रम, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल, इसके अंदर हमारे क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम जो है वो एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं उसमें। अब ये हमारा ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल में सबको पता है इसमें जो है हमारी कौन सी नर्व है, विजुअल एसोसिएशन एरिया है, वीएन का सबसे ज्यादा है, ऑप्टिक नर्व गुजर रही होती है। ठीक है, चैजम से गुजरते हुए ऑप्टिक नर्व की बात है। और हम टेम्पोरल की अगर बात करते हैं, टेम्पोरल एरिया हमारे टू टेम्पोरल लोब हैं। ठीक है, ठीक है, टेम्पोरल लोब है जो कि कान के ऊपर है थोड़े से, उसमें क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, उसके फंक्शन क्या है, स्मेल, हियरिंग, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है। ठीक है, उसमें हम हेयर करते हैं, हेयर ऑडिटरी एसोसिएशन एक ही चीज़ है, और इसमें स्मेल का भी पोर्शन है। ठीक है, प्राइटल की बात करते हैं, टू प्राइटल लोब है हमारे। एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखते हो तो उसमें क्या है, स्पीच है, टेस्ट है और रीडिंग है। जी, ठीक है, तो इसमें स्मोटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया है, जिसमें स्पीच है, आपकी रीडिंग है और टेस्ट है। ठीक है, फ्रंटल लोब की अगर बात करते हैं, इसमें मोटर कॉर्टेक्स आ जाता है। ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स में हमारी स्पीच भी आपने देखा कि प्राइटल लोब में भी हमारा कुछ पार्ट जो है स्पीच का है। जी हीरा, हीरा बहुत लेट आए हो बेटा। ओके, स्पीच भी है, इसमें फ्रंटल एसोसिएशन एरिया है, इसमें हमारा फ्रंटल लोब की बात है। इसमें हमारे टू टेम्पोरल लोब्स हैं, राइट और लेफ्ट में हियरिंग ऑडिटरी एसोसिएशन है और स्मेल का कुछ पोर्शन है। ठीक है, और क्या है, हमारा विजुअल पाथवे जो है हमारा ऑक्सीपिटल एरिया में है। एग्जैक्टली बेटा अदिला, हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव और वेरी क्लियर। टू हमारे क्या है, टेम्पोरल लोब है, जिसमें हमारे हियरिंग ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है और स्मेल का पोर्शन है। और प्राइटल, टू प्राइटल लोब्स हैं बोथ साइड्स पे, उसमें स्मोटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया, जिसमें स्पीच, टेस्ट और रीडिंग पर्पज है। और हमारा ऑक्सीपिटल में सबको पता है ऑप्टिक नर्व इसमें गुजरती हैं, वीएन वाली, तो इसमें हमारा विजुअल एसोसिएशन एरिया है। फ्रंटल की बात करते हैं तो हमारा फ्रंटल एसोसिएशन एरियाज, इज इट क्लियर, और ऑल्सो स्पीच एरियाज। यस, ओके, सेंट्रल सर्कस, सेंट्रल सर्कस और लेटरल वेंट्रिकल, क्योंकि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा ये ब्रीफली एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ब्रेन का कौन सा पोर्शन है, कौन से हमारे लोब्स हैं, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, प्राइटल है और फ्रंटल है। फोर लोब्स के अंदर अंदर हमारे न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें भी ये पोजीशन ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन क्या है, और सुपर इम्पोज ऑन इट्स सर्फेस, तो ये सुपर इम्पोज कर दिए इन गैलो में, ये सुपर इम्पोज कर, लेटरल वेंट्रिकल है हमारा, और लेटरल सल्कस है, सेरिब्रम है, और दिस इज अ स्मॉल वन, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। इज इट क्लियर, दिस इज अ क्लियर व्यू ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि हमारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। फोर्थ वेंट्रिकल,
सेरिबल एक्वाडक्ट जिसमें हम कहते हैं फ्लूइड है, ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल सर्कस, सेंट्रल सर्कस। इज इट क्लियर? ये आपको इतना ज़्यादा मतलब डिटेल डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ इन चीज़ों को आप देख लेते हो। क्रीनियल नर्व और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एनाटॉमी आपको फुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तो इसलिए ये हम आपके लिए थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू एनाटॉमी का डाल देते हैं ताकि आप लोग हेल्थ असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी टू अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। क्योंकि बेसिक आपको ANP आएगी तो डेफिनेटली आप उसकी असेसमेंट कर सकते हो। और असेसमेंट से पहले भी क्या है, इट इज़ अ कंपल्सरी टू कलेक्ट द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। ऑब्टेन करना हिस्ट्री भी जो है वो कंपल्सरी है। हिस्ट्री और एनाटॉमी, जब आपके पास ये दोनों चीज़ें इनफ अमाउंट में होंगी, आपके पास गुड नॉलेज होगा, तो ऑब्वियसली यू कैन एग्जामिन द पेशेंट इजीली। इज इट क्लियर? आर यू विद मी? एनी डिफिकल्टी? ओके. Okay, central nervous system, it means peripheral nervous system. First of all, we are divided nervous system in two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is already discussed and peripheral nervous system now we will discuss. ठीक है? This is a spinal cord, vertebrae, and this is a brief and fibers like thread is a showing a spinal nerves. Okay. G. Peripheral nervous system is a 12 pair of cranial nerves. First of all, originate in the brain, control many activities in the body, take impulses to from the brain. ठीक है, क्या करती हैं ये इनका, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर होते हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स के, जो कि ओरिजिनेट होते हैं किसमें, ब्रेन में, ठीक है, और कंट्रोल एक्टिविटीज इन द बॉडी, और टेक इम्पल्सिस क्या करते हैं, टू एंड फ्रॉम द वे, टेक भी करती हैं और वे भी लेके जाती हैं इससे। इज इट क्लियर? ओके ओके, दिस इज अ क्लियर इमेज फॉर योर understanding. So clinical nerves and their target regions. Sensory nerve as a show in blue, motor nerves in our red. These are the clear pictures for your understanding. But we will discuss in separately in next part too. Okay. Okay. First of all, we are oriented to the cranial nerves. 12 cranial nerves. Some of them are mixed, sensory and motor. Some of them is purely sensory, and some of them purely motor sensory. Olfactory, optic, oculomotor, ocular, trigeminal, abducens, facial, vestibular, cochlear, glossopharyngeal, vagus, sensory, and hypoglossals. Okay, these are the 12 cranial nerves. Olfactory is the number one. This is purely sensory nerve, and her activity is a sense of smell. Optic nerve is a second cranial nerve. It is a purely sensory nerve, or these are performing the activity of visions. वॉइस कट रही है अच्छा बेटा, अपना नेट चेक करें बेटा। मेरे नेट में तो कोई इश्यू नहीं है, मे बी आपकी तरफ से हो, वॉइस इशू आ रहा है बेटा, प्रॉब्लम कर रही है वॉइस। ओके ओके, आई विल रिपीट इट। The cranial nerve, we are focus on the cranial nerve. 12 cranial nerves, olfactory. ओके, अब ठीक हो गई है जी बेटा। आई थिंक मेरी तरफ से वॉइस क्लियर है, कोई नेट का इशू नहीं है, आप लोग अपना नेट चेक करें। एनीवे आई विल चेक। ठीक है बेटा, अब आ रही है आवाज? ओके सोनिया, थैंक यू, अब आ रही है। ओके, सेम हियर, इट मींस ब्रेक हो रही थी बीच में, अब आ रही है आवाज, क्लियर है? नो वी विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू नौरीन बेटा। These are 12 cranial nerve. We are studying a cranial nerve. Olfactory, optic, motor, cochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus,
accessory, and 12th cranial nerve is hypoglossal. Okay, number one, olfactory. It is a function of sensory, and it will performing a sense of smell activity. Optic nerve is a second cranial nerve. It is a function of the sensory. It is a performing as a act as a sensory function or activities showing a visual. Okay. Oculomotor is a third cranial nerve. It is also motor, and they are performing activities, pupillary reflexes, extrinsic muscles movement of the eyes. This is the only table of the cranial nerves, but we will studying as a separately. We will discuss briefly and in depth each cranial nerves. How to assess the olfactory, optic, oculomotors. We will performing each cranial nerve functions. Okay. G. Trochlear. Trochlear is a fourth cranial nerve. Is also it is a motor functions, and they are performing activities as a eye muscles movements. Trigeminal, it means three in one. Fifth cranial nerves, it is a mixed function, is a performing as act as a sensory and motor functions. They are performing ophthalmic branch, maxillary branch, and mandibular branch. They are performing three in one functions. Sensory impulses from a scalp, upper eyelid, nose, cornea, and lacrimal glands. They are performing functions ophthalmic branch, okay, or act as a sensory impulses. Maxillary branch sensory impulses from a lower eyelid, nasal cavities, upper teeth, upper lip, or palate. Okay, or mandibular branch sensory impulses from tongue, lower teeth, skin of chin, and lower lips. Motor action including teeth clenching, movements of the mandible. Okay. Abducent. Abducent is a sixth cranial nerve. As a number, it is also mixed in function, sensory or motor, extrinsic muscles movement of the eye. Okay. Facial is a seventh cranial nerves. It is also is a mixed functions, taste, interior, two-third of tongue, facial movements such as a smiling, closing of eye, frowning, production of tears, and salivary stimulations. Okay. Vestibulocochlear is a eighth cranial nerve. It is a purely sensory nerve. Vestibular branch, sense of balance or equilibrium. Cochlear branch, sense of hearing. Okay. Glossopharyngeal is a ninth is a cranial nerve. It is a function. It is a purely sensory. Vestibular branch. Oh, sorry. Mixed glossopharyngeal is a ninth cranial number, and also it is a mixed function, sensory and motor. Produce the gag reflexes, swallowing, taste, posterior third of the tongue. Okay. Vagus is a 10th cranial nerve, cranial nerve. It is also mixed cranial nerves, sensory and motors. Innervate muscles of a throat, mouth, गैग रिफ्लेक्सेस वाली है, ठीक है. दिस इज आर गैग रिफ्लेक्सेस वर्क एज ए वेगस नर्व. Accessory, we are assess it is a purely motor nerve, and also moment of the we assess the movement of the trapezius and sternocleido muscles, some movement of the larynx, pharynx, and soft palate. Hypoglossals is also we are it is a purely motor function is a 12th cranial nerves. Movement of the tongue for swallowing, movement of the food during chewing and speeching. Okay, is it clear? बेटा अगर इतनी अच्छी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये टेबल सिर्फ प्योरली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, ताकि आपको फुल जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल डेप्थ में ना अंडरस्टैंडिंग करनी पड़े. जस्ट आपको एक चीज़ आप देखिए कि ये कौन से नंबर पे है क्रीनियल नर्व. अगर मैं ट्राइजेमिनल की बात करती हूँ, ये फिफ्थ क्रीनियल नर्व है. अगर मैं वेगस की बात करती हूँ तो ये 10th है. आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए और इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि ये मिक्स है या प्योरली सेंसरी है या प्योरली मोटर. ठीक है. Is it clear?
जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व्स, 12 पेयर्स ऑफ thoracic nerve और 5 पेयर्स ऑफ lumbar nerves, 5 पेयर्स ऑफ sacral nerves, 1 पेयर ऑफ coccygeal nerves। ये सबको पता है कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स की हमने क्यों बात की, कि हमें पता है कि हमारे स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से एरियाज में कितने, जैसे 7 हम कहते हैं सर्वाइकल हमारे वर्टिब्रास हैं, ठीक है, 12 हमारे थोरेसिक हैं, 5 हमारे लंबर वर्टिब्रास हैं, 5 हमारे सैक्रल हैं, ठीक है, और 1 जो है हम कॉक्सीजियल कहते हैं। 5 इसलिए एक जॉइंट भी होता है, ठीक है, इस तरह हम उनको लेबल करते हैं। तो उसी तरह ही हमने 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व की जब बात की तो उसमें 8 जो है हमारे सर्वाइकल नर्व्स की हमने साथ, क्योंकि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं तो उसमें हमने 8 बात कर दी क्योंकि वो हमारी जो है वो जॉइंट नर्व्स के साथ आ जाती है। 12 पेयर्स क्या है हमारे थोरेसिक है और थोरेसिक नर्व भी हमारी 12 है। अगर लंबर के हमारे लंबर जो है हमारे वर्टिब्रास 5 है तो 5 पेयर्स है हमारे, 5 पेयर्स इसलिए कहा कि राइट और लेफ्ट की बात हो रही है। इज इट क्लियर? I think that is enough for you. Tomorrow we will start from the here. We will discuss peripheral nervous system inshallah tomorrow. Any questions, students? Okay. No. Ji students, are you with me? Any question? I think remaining only 8 minutes. Ji students, any question? Any questions, students? Noreen James, very well explained. Thank you, beta. Adila, Aksa, Hira, सब समझ आ गई है या सिर्फ सर से गुजर गया है? थैंक यू नरीन। ओके बेटा, अगर कोई आपकी क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन राइट ऑन नोटबुक एंड वी विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह। ओके, रिमेनिंग लेक्चर वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज। किसी कलर में ओके, थैंक यू। इट इज़ अ प्लेयर फॉर मी कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही सिर्फ ऑनलाइन होते हैं। आप लोग अगर वेल अंडरस्टैंड होंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए अप्रिसिएशन इतनी ही इनफ है। थैंक यू बेटा, बाय बाय।